है. So what is shown on the screen is the circuit diagram. एक शुरू से जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम होता है, इसमें आर एस और एक्स एस से नोट किया है. एस स्टैंड्स फॉर स्टेटर. ठीक है, जैसे आपने आर वन एक्स वन ट्रांसफार्मर में किया था. एक्स एम इज़ द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच. इसमें आर एम भी होती थी, but XM is generally quite large in this case, so that is why only XM is considered and RM is neglected. ठीक है, ये आपके पास कोर की जो रिएक्टेंस आपने डिनोट करी है वो है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की. ठीक है, उसके बाद उसमें करंट है, इनपुट पे जो इनपुट वोल्टेज है V, you can see at the input. Then you have a current IS. This is the stator current, I suffix S. And then we have this IM, that is the magnetizing current. Okay, then we have IR dash. IR dash is the referred rotor current. डैश के साथ आ रही है और आई आर रोटर से डिपेंड वो करता है. ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्टेटर वाइंडिंग. ठीक है, इट इज drawn on the principle of because you consider an induction machine to be a rotating transformer. ठीक है, तो जो उसके जो स्टेटर साइड और रोटर साइड के जो टर्न्स हैं, that is also considered over here. Ns is the number of turns on the stator side and Nr is the number of turns on the rotor side. ठीक है, तो इसमें जो है डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड ऑल्सो द सेकेंडरी और द रोटर इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी और द स्टेटर. ठीक है, तो वी हैव एन इंड्यूस्ड वोल्टेज ई. वी के बाद जो है आई एस जेड एस ड्रॉप के बाद आपके पास ई वोल्टेज पहुंचता है. जब आपके पास आई ये जो स्टेटर ब्रांच की जो इम्पीडेंस है, इसमें जो करंट फ्लो होगी उसके बाद जो ड्रॉप प्रोड्यूस होगा, तो वी में से उतना ड्रॉप प्रोड्यूस होके और आपके पास ई बनेगा वो. नाउ यू हैव ई as a voltage in the in the we have E as the voltage induced in the stator windings, and the number of turns are denoted as Ns on the transformer equation. On the transformer equation, what we have is that the transformation depends upon the number of turns as well as the speed of the rotor, or in fact the speed difference between the rotor and the stator magnetic field. So if the number of if the ratio is assumed as AT, ठीक है, नंबर ऑफ जो हम टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर में ए से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल ए से, यहाँ पे 80 से रिप्रेजेंट करते हैं. 81 ही लिखा हुआ है, 80 यू कंसिडर इट टू बी 80, such that you remember that it is the transformation ratio of the induction machine. That means ns upon nr. तो अगर ns upon nr है ये, तो the transformed voltage on the rotor side will be E upon 80 तो होता अगर आपके पास ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता, because this is a rotating transformer. In that case it becomes SE upon 80. So the voltage induced on the rotor side becomes SE upon 80. Okay. And then again on the very same lines that you have on of a transformer, okay, that you have the reactance to be the leakage reactance of the rotor to be SXR, and because the frequency is changed over here, तो जो 2 pi FL होता था, F जो है वो SF हो जाता है आपके पास. ठीक है, तो आपके पास जब वो SF हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी S टाइम्स F, तो रिएक्टेंस भी S टाइम्स हो जाती है. तो दैट इज S टाइम्स XR, और रेजिस्टेंस पे RR पे कोई चेंज नहीं आता ड्यू टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी. This change in frequency happens due to the thing that the rotor and the stator magnetic fields have a relative speed difference.
ठीक है, आपके पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसी फ्रीक्वेंसी पे होता था जिस फ्रीक्वेंसी पे जो इनपुट साइड की होती थी वही आउटपुट साइड की होती थी, बिकॉज जो प्राइमरी और और सेकेंडरी का जो रिलेटिव मोशन है वो ज़ीरो होता था, दोनों एक ही कोर पे होते थे। इस केस में बिकॉज यू हैव अ रिलेटिव मोशन between the primary and the secondary or stator and the rotor, in that case the transformation is not at the same frequency, it is at a slip frequency, in which the slip is the backdrop of the rotor to the stator magnetic field speed. ठीक है, तो you have a per phase equivalent circuit of a three phase induction motor being shown like this. ठीक है, इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल होगा आगे चल के अभी, है ना। तो ऑन द वेरी सेम, दिस इज द फर्स्ट hand model of a per phase equivalent circuit of a three phase induction motor, and now this will be further approximated. ठीक है, ये तो आपके पास एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट आया है। अब जो है कैलकुलेशंस में कुछ चीज़ें आसान करने के लिए वी गो फॉर अप्रॉक्सीमेशंस इन द सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसमें शुरू से अगर हम देखें, इनपुट वोल्टेज वी होगी, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। इनपुट वोल्टेज वी हो गई, रेजिस्टेंस आर एस हो गया स्टेटर का, जो इंडक्टेंस या लीकेज रिएक्टेंस कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स एस हो गया, आई एस करंट है इसमें, एक्स एम इज द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच रिएक्टेंस, आई आर डैश इज द रोटर करंट रेफर्ड टू द स्टेटर साइड। ठीक है, उसके बाद वी हैव ई एज द इंड्यूस वोल्टेज and that comes after the drop of the stator branch, यानी V में से आई एस जेड एस माइनस करेंगे तो E बनेगा। ठीक है, एक KCL यहाँ पे लगता है कि दैट आई एस इज इक्वल टू आई एम प्लस आई आर डैश, इस वाली नोट पे जो आपकी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की नोट है। ठीक है, दो हिस्सों में करंट डिवाइड होती है आपके पास। रिमेंबर दैट इन दिस केस, इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, दिस इज आई एम हैज़ गॉट एन अप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 25 to 40% तक होती है ऑफ आई एस, आई एम जो है। सो दैट इज़ वाई कैलकुलेशंस जब आप करते हैं तो उस चीज़ को निगलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद एन एस और एन आर है। एन एस इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्टेटर साइड, एन आर इज आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द रोटर साइड। On the basis of ideal transformation, you have an induced voltage SE upon AT at the terminals of the rotor, because EE upon AT is the voltage that is dependent upon the turn ratio, AT is the turn ratio, and S is the slip speed. So that is why it is also multiplied with it. So the voltage available is SE upon AT. Then you have the rotor reactance SXR. Um, S is due to the frequency change that happened from the stator side on the road to the rotor side, and R does not change anyway because it is not dependent upon frequency. ठीक है, एंड करंट भी आपके पास आई आर है। यहाँ पे जो आपके पास करंट और ये जो इम्पीडेंस के टर्म्स हैं रोटर साइड के, तो इन्हें भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया है उस साइड पे। तो व्हेन विल गो फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स में करते थे कि प्राइमरी साइड को जो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी पे या प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड पे ले आते थे, उससे क्या होता था कि आपके पास है क्या, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फिर बीच में एक मैग्नेटिक सर्किट है, फिर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टेटर और मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का है, फिर एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो रोटर का है। तो तीन सर्किट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है वो हम एक रिफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इन जिसमें जो है प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है, और स्टेटर साइड को रोटर पे और रोटर साइड को स्टेटर पे लेके जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूज व्हाट वी हैव। ठीक है, एंड देन वी हैव ओनली सिंगल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सारी चीज़ें जो दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक मैग्नेटिक सर्किट को हटा के एक ही सर्किट बनता है, तो वो रिफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है, किसी भी एक साइड को रेफर करके। एंड द इफेक्ट्स ऑफ the components that are connected on uh, the other side, what is being referred back to the first side,
are being taken in the exact terms of their actual um, impact on the on that particular site on which they are being say ट्रांसफॉर्म्ड. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपके पास दूसरा सर्किट है पर रिफर टू स्टेटर है, इसमें स्टेटर ब्रांच तो वैसे ही रहेगी जैसे थी आपके पास एग्जैक्टली ठीक है. और जो आपके पास रोटर ब्रांच है इसमें जो है वो करंट आई आर डैश बन जाती है, ये जो आपके पास एक्स आर डैश बन जाता है और ये आर आर डैश बाई एस बन जाता है. तो यू हैव अ पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट referred to the stator in which you have only one electrical circuit that is to be taken care of now. ठीक है, और एक्स आर डैश और आर आर डैश बाई एस की वैल्यूज जो हैं वो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से जैसे ट्रांसफॉर्मर में निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं. द ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू विल हैव टू टेक केयर इज दैट यू विल हैव टू टेक केयर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द rotor conductors in the stator magnetic field. So S is also introduced over here. तो जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में एस ई अपॉन ए टी लिया तो एस अपॉन ए टी जो है आपके पास सारी जगह पे इस्तेमाल होगा ट्रांसफॉर्मेशन में. अगर करंट है तो रिवर्स होगा जैसे वन अपॉन ए टी के हिसाब से चलते थे, और अगर वोल्टेज है तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है. ठीक है, देन आफ्टर दैट फर्दर ये तो हमारे पास ये सर्किट आ गया जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया इसे, और ये ए बी के राइट, ए बी जो लाइन है डॉटेड लाइन, इसके जो राइट हैंड साइड वाली जो पूरा पार्ट है वो हम यहाँ पे ले आए. ए बी बनती है आपकी यहाँ पे जहाँ पे ई बना हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ई एक एरो बना हुआ है जहाँ इंड्यूस वोल्टेज ई शो करी गई है, यहाँ पे लाइन ए बी है और सारा ये सर्किट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है, तो ए बी से पहले ये ई वाली लाइन पे देखिए आप, तो ये एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वैसी ही जैसे है, और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट आ गया है जिसमें इफेक्ट ऑफ द आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्लस द रोटर वाइंडिंग्स इज बीइंग पुट एज shown in this figure. ठीक है, अब now further what is being done over here is that दो करंट्स हैं आपके पास, आई एस है और यहाँ पे आपके पास पहला उसमें आई एस फ्लो हो रही है और आई एम में डिवाइड होती है और फिर ये बची हुई जो है आई आर डैश दूसरी तरफ चली जाती है. ओके, सो नाउ we have a further approximation of this, that this IM for large machines is say of the order of 20-25%. So that is also removed from here. Okay. So ये भी एक further approximation है, कहीं कहीं पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं. Now remember one thing that जैसे हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, why we draw the equivalent circuit of a transformer or an induction machine to estimate the performance. To estimate का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना. ठीक है, तो हमने वहाँ पे किया था ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए थे. ठीक है, और जो इंडक्शन मशीन था उसमें जो था वो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट किए थे, और उसकी वजह से जो है वो हमने स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग का जो है वो पैरामीटर्स यानी आर एस एक्स एस और आर आर और एक्स आर ये सारे एक्स एम ये सारे निकाले थे, और उसके बाद जो है हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया था. इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मकसद क्या था कि टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन. एस्टिमेट द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट transformers, you talk about efficiency and voltage regulation, and when you talk about the performance of an induction motor, तो उस केस में जो है वो efficiency और speed regulation की बात करते हैं हम. स्पीड efficiency और speed regulation की बात करेंगे. ठीक है, तो होगा क्या कि if you have a practically a physically present machine, ठीक है, तो आप उसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसे लोड करके आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, आप उसे लोड करिए और डिफरेंट लोड्स पे आप उसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लीजिए. एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो है वो आप इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रेशो देख लीजिए. दोनों इलेक्ट्रिकल हैं ट्रांसफार्मर के केस में. यू कैन मेजर देम एंड
यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कैलकुलेट, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि देन व्हेन यू हैव ए एन इंडक्शन मशीन, आप उसे मैकेनिकली लोड करिए, डिफरेंट लोड्स पे जो है वो आप उसका एफिशिएंसी मैकेनिकल होती है तो वो आउटपुट मैकेनिकल होता है, तो आउटपुट मेजर कर लीजिए कितना आउटपुट दे रही है, इनपुट इलेक्ट्रिकल टर्म्स में मेजर कर लीजिए और एफिशिएंसी निकाल लीजिए। स्पीड रेगुलेशन आप स्पीड, नो लोड स्पीड और लोडेड स्पीड का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से निकाल लीजिए। तो all the things can be measured over here and can be calculated. But now if you don't want to do this exercise और आप मशीन लाओ, उसके लिए एक लोड लाओ, उसके लिए सप्लाई लाओ, उसे वेरी कराओ, फिर मेजर करो, तो ये सारी चीज़ें जो हटा के आपने उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया था और जो है उससे अप्रॉक्सीमेट परफॉर्मेंस जो है यानी एस्टिमेट कर ली थी परफॉर्मेंस उसकी। एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं आती, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस हैं, ये हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है वो जब अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ assumptions all around. So you have a feel of the performance of the machine, or in fact you estimate the performance of the machine. Estimate का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। कैलकुलेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है। तो जब आप इससे करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट से जो भी परफॉर्मेंस एस्टिमेशन करेंगे तो उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा खाली। तो उसके बाद भी इफ़ यू वांट टू फर्दर ईज योर कैलकुलेशंस इन एस्टिमेशंस, इन दैट केस आप उसे फर्दर एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है, कई तरह का हो सकता है जिसमें आप कई पैरामीटर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस व्हाट यू कैन हैव। और दो ब्रांचेस हैं जैसे आप पैरेलल में लगी हुई हैं, तो अगर आप एक को नेग्लेक्ट कर दें, जैसे मैग्नेटाइजिंग ब्रांच यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रखी है इस वाले केस में, तो क्या होगा कि आपके पास जो एक्चुअल, ये इस वाले केस में क्या था पहले यहाँ देखिए, ट्रांसफॉर्म सर्किट है रोटर का स्टेटर साइड पे, ठीक है। तो एक एक्स आर डैश, आर आर डैश बाई एस, आई आर डैश, ये सब बन गया, ए बी का राइट हैंड साइड वाला सब इस तरफ आ गया। तो हमारे पास तीन सर्किट्स हुए, पहला हुआ स्टेटर सर्किट, दूसरा हुआ मैग्नेटाइजिंग ब्रांच और तीसरा हुआ हमारे पास रोटर सर्किट रेफर टू द स्टेटर साइड, ठीक है। तो अब ये है क्या, अगर आप देखें इसे इलेक्ट्रिकली तो ये तीन इम्पीडेंसेस हैं। पहला इम्पीडेंस स्टेटर का है, आर एस एक्स एस, दूसरा इम्पीडेंस है एक्स एम मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का, और तीसरा इम्पीडेंस है एक्स जेड आर डैश कह लीजिए इसे, जिसमें एक्स आर प्लस आर आर डैश बाई एस है, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकली तो क्या होगा कि जो रोटर साइड की इम्पीडेंस है और जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की जो इम्पीडेंस है, ये दोनों पहले पैरेलल में ऐड होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों का पैरेलल जो है वो स्टेटर के सीरीज में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकल आएगी इस हिसाब से, ठीक है। अब अगर हम इसे फर्दर, यानी इसमें आपको एक पैरेलल कैलकुलेशन करनी पड़ी और उसके बाद हमने फिर सीरीज निकाला। अब इसे हमने फर्दर किया कि एक्सएम को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से ए बी पे से ही हटा दिया, मान लीजिए यहाँ पे था, तो व्हाट हैपेंस इज दैट आपके पास दो ही इम्पीडेंसेस बची। एक्सएम कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज ऑफ ए वैल्यू दैट at times at high loads even do not matter much, ठीक है। मैटर मच ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्ट करती। तो उसमें आपने क्या किया कि आपने जब ये एक्सएम हटा दिया ऊपर वाले सर्किट में से, यहाँ से एक्सएम हटा दिया, तो नाउ यू आर सिंपली हैव टू इलेक्ट्रिकल सर्किट बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज, यानी आर एस एक्सेस और एक्स आर डैश और आर आर डैश बाई एस, ठीक है। तो आपने सिंपल एक सीरीज इम्पीडेंस को ऐड कर लिया, यानी आर एस प्लस आर आर डैश बाई एस उसका एक रियल पार्ट हो गया, एक्स एस प्लस एक्स आर डैश जो है उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, जे पार्ट हो गया, ठीक है। और वोल्टेज है वी एस एंगल थीटा से, तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ the parameters or the performance, the power input,
पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से निकल आएंगी अगर ये बनती हैं तो दिस इज़ अ फर्दर सिंप्लीफाइड सर्किट। ठीक है, अनदर सिंप्लीफाइड सर्किट इज दैट कि अपने पास ये वाला था। ठीक है, आपने क्या किया, एक्सएम को जो है उठा के इनपुट साइड पे लगा दिया, यानी वाइंडिंग से पहले लगा दिया। सी ओवर हेयर, यहाँ पे जो डी में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या वो है कि ये दोनों आपकी डायरेक्टली सीरीज में जुड़ गई, आर एस और सॉरी स्टेटर वाइंडिंग की इम्पीडेंस और रोटर वाइंडिंग की इम्पीडेंस दोनों सीरीज में जुड़ गई, और फिर ये इसके पैरेलल में आ जाते हैं एक्स एम के। ये अजम्पशन हम ऐसे ले सकते हैं क्योंकि अगर आप इस वाले सर्किट में देखें तो आई एस फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो जो भी वोल्टेज वी है यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज ई है अक्रॉस द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, इनपुट पे वी है, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच पे ई है, तो V is approximately equal to E because IS ZS drop is very small। तो अगर V और E बराबर ले लें तो XM ब्रांच को हम पीछे भी ले जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करी है कि XM ब्रांच को हम E के साथ पीछे ले गए। ठीक है, और ये जो RS एक्सेस ब्रांच है, ये हमारी यानी स्टेटर ब्रांच है, ये आगे आ गई, और स्टेटर और रोटर के जो इम्पीडेंसेस हैं दे कैन बी सिंपली नाउ एडेड अप इन सीरीज एंड कैन बी पुट इन पैरेलल विद XM। ठीक है, तो ये तो तरीके हो गए कि कैसे कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट को वो करते हैं। इसका कुछ पार्ट जो है वो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेशंस उसकी सिंपल रह जाती हैं, दैट वी हैव द एयर गैप पावर। ठीक है, जो इसमें है एयर गैप पावर जो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर। ठीक है, तो थ्रू द गैप, तो वो सिंपली जो है वो थ्री फेज है तो 3 × ई इंटू आई आर और कॉस फाई आर, रोटर साइड की करंट, रोटर साइड का पावर फैक्टर। ठीक है, इसमें मैकेनिकल पावर जब आप निकालेंगे तो गैप पावर में से लॉसेस माइनस कर देते हैं, तो पी एम इज द मैकेनिकल पावर, तो गैप पावर माइनस आई आर स्क्वायर और आर आर डैश स्क्वायर, ये आपके पास लॉसेस हो गए। ठीक है, तो अगर हम इसी को फर्दर वो करें, सब्सटीट्यूट करें, इसकी वैल्यूज निकालें, तो वो पीजी के हिसाब से यानी गैप पावर के हिसाब से 1 - S निकल के आती है, यानी एस पी जी जो है आपके पास जो है वो लॉसेस हो जाएंगे, और 1 - S पी जी जो है वो मैकेनिकल पावर हो जाएगी, टोटल पावर पीजी हो जाएगी गैप पावर। नाउ द डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा। ठीक है, पी इज इक्वल टू टी ओमेगा होता है, तो टॉर्क हो जाएगा आपका पास पी अपॉन ओमेगा, और जो गैप पावर के हिसाब से है तो पी अपॉन ओमेगा एस, जो भी गैप पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है सिंक्रोनस स्पीड पे है आपके पास स्टेटर वाइंडिंग, तो स्टेटर वाइंडिंग की मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगी आपके पास पी जी अपॉन ओमेगा एस। नाउ द टॉर्क ऑफ दीज इक्वेशंस बिकम 3 अपॉन ओमेगा एस एस आई आर स्क्वायर आर डैश बाई एस। ठीक है, ये न्यूटन मीटर में, यानी जो वैल्यूज आपने पीजी की निकाली थी वो सिंपली ओमेगा एस के टर्म्स में जो है वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, यहाँ हमने ऐसे रिप्लेस किया, जो आपके पास ये इक्वेशन है, टॉर्क डेवलपमेंट द मोटर इज इक्वल टू टी अपॉन पी एम अपॉन ओमेगा एम। पी एम को जब हमने पी जी से रिप्लेस किया 1 - S से, तो ये ओमेगा एम जो है ओमेगा एस बन गया। यहाँ पे सब जगह सफिक्स में एम एस लिखा हुआ है, तो ओमेगा एस ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो द नेट टॉर्क नाउ बिकम्स इन 6.17 टू बी 3 अपॉन ओमेगा एस आई आर स्क्वायर आर आर डैश बाई एस। ठीक है, अब इसमें जो है हम बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस, ये हमारे पास जो 6.17 है, ये 6.17 है, इसमें जो आई आर डैश स्क्वायर है इसे हम रिप्लेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन, ये तो सारी ऊपर की मैकेनिकल इक्वेशंस हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट कन्फिग्रेशन व्हाट वी आर यूजिंग। सर्किट कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा वाला इक्विवेलेंट सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सब में अपनी आई आर डैश की अलग वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी।
ठीक है, इन सब में अलग होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन एनी ऑफ दीज जो भी आप सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका सिंपली क्या है, अगर आप देखें तो टॉर्क इक्वेशन 6.17 में जो दिख रही है आपको, 3/ओमेगा s वैसे ही रहेगा, आर आर डैश बाई एस भी वैसे ही रहेगा। आई स्क्वायर की जगह सिंपली हमारे पास आया v अपॉन जेड। अगर आप 6.18 में देखें, आर आर डैश बाई एस अगर हटा दें इसमें से और 3/ओमेगा s हटा दें, तो क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन जेड। जेड कैसे, आर 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 एस बाई आर एस प्लस आर आर डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स आर डैश का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली v अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू आई। यानी आपने सिंपली क्या किया कि इस वाले सर्किट में ये जो आई आर इसमें जो दिया हुआ है, ये सिंपली जो वोल्टेज है अक्रॉस इम्पीडेंस और वोल्टेज और इम्पीडेंस को दोनों को जो है वो आपने वो कर दिया, क्या नाम है, वोल्टेज को इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया तो करंट बन गई आई आर डैश। ठीक है, तो इम्पीडेंस कितनी है, स्टेटर और रोटर ब्रांच का सम वेक्टोरिकली ऐड करके, और वोल्टेज कितनी है जो हमने इनपुट वोल्टेज वी ली है। ठीक है, तो v अपॉन जेड, ये वाला जेड जो हमारे पास सीरीज में ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास v अपॉन जेड वाला जो पार्ट है वो ये v स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है आपके पास, तो z आता है अंडर रूट करके ये, तो इसका वो हट गया आपके पास, अंडर रूट हट गया और ऊपर v स्क्वायर बन गया। तो द नेट टॉर्क इक्वेशन बिकम्स 3/ओमेगा s v स्क्वायर आर आर डैश बाई एस। इसमें t सफिक्स रहने दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिस ओनली क्रिएट्स कंफ्यूजन। ठीक है, ऐसे ही आर आर डैश, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, आर एस प्लस आर आर डैश बाई एस है, एंड एक्स एस प्लस एक्स आर डैश, ये ठीक है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ये वाला जो टी छप गया है दोनों में, ऊपर बी और वी टी और आर टी, तो दिस इज एक्चुअली एस सफिक्स एस, यानी इनपुट साइड के वोल्टेज और स्टेटर साइड की वोल्टेज, और आर एस इज द स्टेटर साइड रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम कॉपर लॉसेस निकाल लेंगे, एसपीजी आपके पास 1 माइनस एसपीजी तो मैकेनिकल पावर हो गई, बचा हुआ जो गैप पावर में से जो है वो कॉपर लॉसेस होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास नेट इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब जो है जो हमारे पास ये टॉर्क इक्वेशन आई, दिस इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड, स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्लिप। ठीक है, यहाँ जो है ओमेगा एम एस जो लिखा हुआ है, दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, एंड एस इज द स्लिप। तो यू हैव ए रिलेशन बिटवीन टी एंड एस। ठीक है, बिकॉज यू वेरी वेल नो, जो आप स्पीड निकालेंगे तो अगर सिंक्रोनस स्पीड पता है आपको और स्लिप पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। तो टॉर्क और स्लिप से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस इन टर्म्स में हम बनाते हैं, दोनों चीज़ें बनाते हैं। देखिए, जब हम इंडक्शन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, you can draw the characteristics on a TS plane, T, and you can also draw the characteristics on T omega plane. In case of T omega, you will have to first convert S into omega and then you draw the characteristics. Okay. So this is how we are going to proceed in case of these conditions. In these conditions, what we have is that based on these equations, based on this equation, this one, 6.18, we'll be applying different methods of speed control in for operation of for control of speed using different means or different parameters independently और at times simultaneously also, यानी मिला के भी इस्तेमाल करेंगे इन्हें और अलग अलग भी इस्तेमाल करेंगे। तो tomorrow most probably we'll be discussing about speed control methods what are available,
इसमें जो है अगर आप देखें तो एक वेरिएबल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन में देखें तो you have Vs square. This is the supply voltage. So this parameter can be varied. The second thing is that you have omega ms. This is a representation of frequency or the synchronous speed. So this can be varied. We'll see how it is varied and what are the effects of these. ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास एक है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल आर डैश, ये आपका न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है इसमें। दिस कैन ऑल्सो बी वैरिड, बट दिस कैन ओनली बी वैरिड इन केस ऑफ wound rotor induction motors in which the terminals of the rotor are bought outside। ठीक है, वाउंड रोटर इंडक्शन मशीन में ही आपके पास रोटर टर्मिनल्स एक्सेसिबल होते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स, रोटर वाइंडिंग्स अवेलेबल होती हैं। So that is why you can also vary this in case of wound rotor induction machines. Plus, you also have a voltage injection method in the rotor circuit, and this method of injection is only possible in case of wound rotors again, because the terminals of the rotor windings are required or to be accessible in this case. So जो आपके पास दो methods हैं, पहले supply voltage control and supply frequency control, or the input frequency control, they can be applied to any of the any type of constructions of induction machines, maybe squirrel cage or wound rotor. And the second one is that you have rotor resistance control and voltage injection in the rotor circuit. This is possible only in case of machines which are which have a wound rotor and the terminals of the rotor windings are bought out. ठीक है. So we'll be discussing in detail about all these four methods, and at times we'll be also considering their operations in multi quadrants of T omega plane। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी उस मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन की भी बात करी जाएगी इसमें। ठीक है। Now anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? No, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।